Hello students, I hope you all are doing well. And students, this is the video number 2 of your class 10 social science geography lesson number 1, that is the resources and development. Student, this lesson is very important and the link for the part 1 of this video is in the description box. The motive behind making this video tutorial for you in this time is to give you a line by line explanation by keeping you safe at home, students. So you need to watch this series very well for your board preparation, students. So without any further ado, let's start. शुरू करते हैं students. Resource planning, it is very important, 3 marks or for 5 marks. This is very important part. What is resource planning? In the previous part, that is in the part 1, we already know that what is resource means. So let's start. Planning is the widely accepted strategy for judicious use of resources. Planning for anything, if you have to prepare for the board examination, we have to prepare for any examination, then planning is a very necessary part. So resources is also come into that circle. To use the resources, planning is a very necessary. The reason is that, students, because if we go for the non-renewable resources, if we can't use them properly, judiciously, then eventually they will end up soon. Okay, students? So it has important in a country like India. Yes, resource planning is very important in our country, which has enormous diversity in availability of the resources. Our country is very big. It is one of the 7th largest countries in the world, and it has lots of diversity. In our country, there is a mountain, plateaus, desert, plain area. So there is a lot of diversity. For that, we need to plan our resources very well, my dear kids. There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. There are regions, there are areas which are rich in certain types of resources. कुछ ऐसे areas हैं जहाँ पर resources बहुत ज़्यादा हैं और कुछ हैं जहाँ पर बहुत कम हैं. There are some other regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of the resources, and there are some which have an acute shortage of some vital resources. Yes, there are some regions in our country which are self-sufficient, वो आत्मनिर्भर in terms of availability of the resources. They don't need the resources from outside states or any other reason. They are self-sufficient. They have an ample amount of resources, and there are some regions which have an acute shortage, and there are other रीजन्स वेयर इज एक्यूट शॉर्टेज, पूरी कमी है वहाँ पे वाइटल रिसोर्सेज की, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज की. फॉर एग्जाम्पल समझते हैं. द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट. In our India, there are state like Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. They are rich in minerals and coal deposit. There are different types of minerals and coal deposits are over there. Arunachal Pradesh has abundance of water resources but lack in infrastructural development. Arunachal Pradesh is a state in northeastern country, my dear students, where is lots of abundance of water, but the infrastructure development is very low. That is the road, bridges and these types of things are very low. The state of Rajasthan is well endowed with solar and wind energy but lack in water resources. Yes, our another state of the country, Rajasthan, it has a very good amount of a solar and wind energy capacity, but it lacks of water resources. There is a third desert in Rajasthan. It is one of the biggest desert in our country. The cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country, and in the northern part of the India, there is a union territory Ladakh where it is very cold. There is a cold desert over there and it is totally isolated. वहाँ पर अब ठंडा ज़्यादा है. So it has very rich and cultural heritage but is deficient in water. It has a very rich cultural heritage. There are lots of religions are practiced over there, mainly Buddhism. But if you go for that water deficiency, it is low. Water is not low. Infrastructure, road facility is also not proper over there, and some vital minerals are also not in the Ladakh region. This call for balanced resource planning at the national, state, regional and local levels. For this is the reason, यही रीज़न है कि we have gone through a different examples. इस वीडियो में अभी आप देख रहे हो कई एग्जांपल्स इसमें दिए गए हैं इस चैप्टर के पीडीएफ में. ये देखा जा रहा है कि कहीं पर कोई चीज़ ज़्यादा है, कहीं पर कोई चीज़ कम है, तो उस चीज़ को बैलेंस बनाकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रीजनल और लोकल लेवल पे, जिससे कि अलग अलग रीजन्स पे जितने लोग रिसाइड करते हैं स्टूडेंट्स, उन सभी लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सकें. ओके, तो इसके लिए रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ वेरी एसेंशियल एंड द वाइटल पार्ट. ओके,
and this part is very important for 3 marks and 1 marks maybe also. So resource planning in India. Resource planning is a complex process which involves, resource planning is a very complex, is a very डिफिकल्ट प्रोसेस वी कैन से दैट इट इन्वॉल्व्स क्या क्या होते हैं. 3 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन पूछता है. देन यू हैव टू एलोबरेटली राइट इन दैट पॉइंट ऑल्सो. द पॉइंट नंबर 1 इज द आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री. What is the resource planning? Point number 1 is the identification and inventory of resources. Identify where the resources are located and what are the use, what are the demands of that resources, and the inventory, and to keep that resources safe, to keep their resources safe for a proper judicious use. सो इसमें क्या होता है आइडेंटिफाई करने में. दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज. इसमें क्या होता है सर्वेइंग होता है कि वो पर्टिकुलर रिसोर्स कितने रीजन तक पाया जाता है. इंडिया का मैपिंग होती है कि कहाँ कहाँ ये रीजन पाया जाता है, किस स्टेट में, किस रीजन में. देन क्वालिटेटिव, उसकी क्वालिटी कितनी है, दैट इज व्हाट इज द क्वालिटी. इट इज़ गुड क्वालिटी, मीडियम और हाई क्वालिटी. एंड इन द क्वांटिटी, व्हाट इज द क्वांटिटी, हाउ मैनी मेट्रिक टन्स, हाउ मैनी व्हाट इज द क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी का सब मेजर किया जाता है. तो पॉइंट नंबर 1 इज दैट आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री एंड इन विच यू हैव टू असेस द फॉलोइंग थिंग्स: सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन. Okay students, now the second one is the evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plan. Evolving a planning structure, there should be a very good planning structure also, because without plan the resources may end up soon or it may be not used properly. So planning is a very essential part, my dear kids. So structuring and appropriate technology to use the resources, we need an appropriate technology. दैट टेक्नोलॉजी विच कॉस्ट लेस, ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज जिसमें पैसा कम लगे और साथ ही साथ एफिशिएंट, एक तरीके से एफिशिएंट आउटपुट दे, बढ़िया आउटपुट दे. स्किल्स होने चाहिए मशीन्स को चलाने के लिए, प्रॉपर नॉलेज, ईच एंड एवरीथिंग, सब चीज़, लेबर्स अच्छे होने चाहिए, इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स होने चाहिए, इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए उसके रिलेटेड उस पर काम करने के लिए. फॉर एग्जांपल कोल है, तो कोल है इंडिया में बहुत सारे डिपोजिट हैं, तो उसके लिए अलग कोल इंडिया लिमिटेड बनी हुई है, ठीक है. फिर स्टील है, स्टील को प्रॉपर यूज़ करने के लिए सेल बनी हुई है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. तो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन माय डियर किड्स, जिससे कि हम रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ कर पाते हैं. Okay my dear kids, now the third one is the matching the resource development plan with the overall national development plan, and whatever the plan has been made, जितना प्लान बनाया गया उसको नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मेजर करना. फॉर एग्जांपल ईच एंड एवरी ईयर, हर साल मार्च एंड में स्टूडेंट्स इकोनॉमिक सर्वे आता है, जिसमें हर साल कितना हमने स्टील प्रोड्यूस किया, कितना कोल प्रोड्यूस किया, उसको बताया जाता है, और फ्यूचर में क्या एस्टिमेट है कि अगले साल के लिए हम कितना प्रोडक्शन करेंगे. ये सब डेवलपमेंट एक प्लान होता है. इसी की वजह से तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज आर सेटअप्स हैं कंपनीज, और साथ ही साथ उन कंपनीज के सेटअप होने से स्टूडेंट्स कई लोगों को जॉब्स भी मिल रही हैं. तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट part for the development point of view. India has made concerted effort for achieving the goal of resource planning right from the first 5-year plan launched after the independence. इंडिया शुरू से ही, जब से इंडिया का फर्स्ट 5-year प्लान हुआ था, आफ्टर द इंडिपेंडेंस देयर वाज अ स्कीम 5-year प्लान, जिसमें कि 5 साल के लिए एक एम सेलेक्ट किया जाता था और उस एम पे काम किया जाता था. फॉर एग्जांपल आज हम अपने देश में देखते हैं IITs, IIMs, बड़ी बड़ी कंपनियां देखते हैं, PSU देखते हैं, वो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट 5-year प्लान्स का ही है स्टूडेंट. तो उसमें क्या बताया था कि रिसोर्स प्लानिंग पहले ही फर्स्ट 5-year प्लान जो हुआ था, पहला पंचवर्षीय योजना हुई थी, उससे ये सब चीज़ें शुरू हो गई थी स्टूडेंट्स. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन. Availability of resources is a necessary condition. It is very very necessary for any country. If there is a lack of resources in any country, that country is have to do a lot of effort for the development. For example, एक एग्जाम्पल ये लेते हैं, सऊदी अरेबिया, ओमान, मिडिल ईस्ट की जितने भी कंट्रीज है, देयर आर लॉट्स ऑफ पेट्रोलियम रिजर्व. वहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं स्टूडेंट. तो they are using their petroleum reserves, and they are one of the richest countries in the country world. तो उनके पास रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स, उसको अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, उनके पास ज़्यादा इनकम है. जिस देश के पास नहीं, वहाँ पे इनकम लो है. बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ corresponding changes in the technology and institution may hinder the development. बट अगर रिसोर्सेज कम होंगे और साथ ही साथ उसके टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस भी अगर उस हिसाब से नहीं बदले देती हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि डेवलपमेंट में रुकावट आती है माय डियर किड्स. ओके, देयर आर मैनी रीजन्स इन अवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज, बट दीज आर इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन.
देयर आर मैनी रीजन्स इन अवर कंट्री, बहुत से क्षेत्र अपने कंट्री में जहाँ पर रिच हैं, वो बहुत उनके पास रिसोर्सेज है, लेकिन वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन है, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, दे आर रिच इन द रिसोर्सेज बट स्टूडेंट दे आर वेरी बैकवर्ड, दे आर नॉट अमंग द टॉप 5 states of the country which are giving a maximum share in the per capita income. You all know what is per capita income, I have already discussed in the economics lesson number 1. On the contrary, there are some regions which have a poor resources base but they are economically developed. कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि उनका रिसोर्स बेस बहुत पुअर है बट दे आर वेरी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. फॉर एग्जांपल पंजाब एंड हरियाणा, देयर आर not any type of natural resources which are found over there in a maximum number, but due to the hard work, due to the labor and due to the availability of water, and we can say that the availability of the modern techniques, those two states Punjab and Haryana have a maximum per capita income. Okay, now let's move to the further part. Okay, the history of colonization reveals that rich countries in colonies were the main attraction for the foreign invaders. कोलोनाइजेशन हुआ था, जो कि अलग अलग देश के जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो जाके अलग अलग देश पे एज अ बिज़नेस या बिज़नेस के मामलों के लिए जाके वहाँ पे जाके वो बात करते थे, वो अपने को ग्रो करने के लिए. तो कॉलोनीज़ अपनी सेटअप करते थे, फिर वहाँ के रूलर्स को इन्फ्लुएंस करके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके वहाँ पर राज करने, जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में किया. तो जो कॉलोनियल जैसे वो वहाँ पर जाते थे जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती थी, वो कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेडर जो आक्रमण हमारे देश में किसी भी देश में करते थे वो इसी वजह से देख के करते थे कि उस पर्टिकुलर देश में कितना रिसोर्स अवेलेबल है. It was primarily the higher level of technology development of the colonizing country that helped them to exploit resources of other region and establish their supremacy over their colony. It was primarily the higher level of technology development. सबसे ज़्यादा जरूरी क्या था कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए ऑफ द कोलोनाइजिंग कंट्री. जो भी कंट्री कोलोनाइजिंग करती थी वो क्या करती थी कि अपने वो जगह की टेक्नोलॉजी लाती थी उस देश में और वहाँ के व्यापारियों को सब चीज़ें बताती थी, जिससे कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करके बाद में वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते थे. फॉर एग्जांपल समझते हैं, इंडिगो नील होता है जो कि कपड़े को रंगने के काम आता है स्टूडेंट्स, वो उसकी फॉरेन में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो यूरोप में वो अच्छे से हो नहीं पाता था, तो इंडिया की जो क्लाइमेट थी वहाँ पर सूट करती थी. तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स आए, जब उन लोगों ने अच्छे से राज करना शुरू किया तो बिहार एंड देन वेस्ट बंगाल के रीजन में मास नंबर पर उन्होंने इंडिगो की खेती करवाई. तो क्या करते थे कि ज़्यादा सुप्रीमेसी करते थे, यही सब काम करते थे. Therefore, resources can contribute to the development only when they are accompanied by the appropriate technology development and institutional changes in India. तो रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट ओनली कभी कंट्रीब्यूट करेंगे जब उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजीज हो और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो स्टूडेंट्स. ओके, इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस ऑल इन द डिफरेंट फेजेस ऑफ कोलोनाइजेशन. इंडिया ने एक्सपीरियंस किया है कैसे एक्सप्लॉइट किया ब्रिटिशर्स ने. Therefore, India development in general and resources development in particular does not involve the availability of the resources. तो इंडिया में एक आदत है कि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ही डेवलपमेंट नहीं है, बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड हिस्टोरिकल एप्रिशिएशन ऑफ द पीपल. साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी अच्छी होनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन, स्किल्स होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए. सिंपल ये हुआ कि ह्यूमन हुआ काम कर रहे हैं, अनस्किल्ड काम नहीं, स्किल्ड होना चाहिए, हाउ टू यूज़ द मशीन, हाउ टू यूज़ द अदर वर्क्स, एंड देन द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल, और लोगों के हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस की व्हाट आर द मिस्टेक they had done in the past and what the lesson they have learned and what the new innovation they are implementing in the new areas. Okay, now the next one is the conservation of the resources. Resources are vital for any development activity. Resources are very vital for any development activity, but irrational consumption and overutilization of the resources may lead to a social and economic and environmental problem. But if the consumption is irrational, it is not proper, and then resources are overutilized, मतलब वट रिक्वायरमेंट ज़्यादा कम है लेकिन उसके बाद यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. ज़्यादा यूज़ होगा तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पॉल्यूशन बढ़ेगा, और सोशो इकोनॉमिक होगा तो ज़्यादा हो जाएगा मार्केट में, तो उससे क्या होगा कि उस पर्टिकुलर चीज़ का जो होगा डिमांड होगा, सप्लाई होगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा. ओके, to overcome those problems, resource conservation at various level is important. So overcome these problems, the socio-economic environment problem, that is the resource conservation is very necessary. This had been in concern of the leaders and thinkers of the past. ये क्या है, it is very concern
इट इज़ वन ऑफ द मेजर कंसर्न फॉर अवर लीडर ऑफ आवर पास्ट। हमारे जो पास्ट के जो लीडर्स थे उनका सबसे बड़ा कंसर्न था, बिकॉज बाय द लेसन विच हैज़ बीन गिवन बाय द ब्रिटिशर्स अबाउट they were the experience, we can say that, not the lesson. With the experience we have experienced through the exploitation of Britishers in our country, our past leader have experienced lots of things. So Gandhi ji was very apt in, गांधी जी ने बात कही थी, क्या कहती सुन, voicing his concern over about resource conservation in this world। उन्होंने कहा था कि रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए क्या कहा था, उन्होंने बहुत अच्छे शब्द बोले थे। 1 marks में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम दिस कोट हैज़ बीन पुट एंड हु सेड दिस वर्ड्स, ऐसे पूछ दिया एक बार। देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी नीड्स, सभी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, नॉट फॉर एवरीबडी ग्रीड्स, लेकिन सबके लालच के लिए उतना पर्याप्त नहीं है। ओके, सो इट मीन दैट इन दिस quote Gandhi ji tried to say that we need to conserve our resource judiciously। He placed the greedy and the selfish individual and exploitative nature of the modern technology at the root cause for the resource development at the depletion at the global level। He said that the greedy and selfish individual, those individuals who are exploiting the resources excessively, बहुत ज़्यादा ही रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो उससे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, तो उससे क्या हो रहा है, रिसोर्स डिप्लीट हो रही है, रिसोर्स खत्म हो रही है ग्लोबल लेवल पे। He was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses। He against the mass production, बड़ी मात्रा में जो प्रोडक्शन होता था बड़ी चीज़ों का, जैसे 10 चीज़ की जरूरत है 20 चीज़ें प्रोड्यूस हो जा रही थी, तो उसके खिलाफ वो कहीं ना कहीं खिलाफ रहते थे, और वो कहते थे कि प्रोडक्शन बाय द मासेस, वो कहते थे कि कम प्रोड्यूस हो, लेकिन उसके साथ ही साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इट इज़ वन ऑफ अ कोट्स बीच में कुछ दिए हुए अबाउट अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट समिट स्टूडेंट्स, सो यू कैन गो थ्रू योर एनसीईआरटी बुक्स और यू कैन learn from anything from help book। Okay, land resources students, so land resources, we live on land, we perform our economic activities on land and we use it in a different way। वी लिव ऑन लैंड, हम ज़मीन पर रहते हैं और वहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। इंडिया इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, अटमोस्ट इन्फॉर्मेशन, इंडिया लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, कहीं ना कहीं ज़रूरी है, क्योंकि सारी फैक्ट्रीज़ हो गए, हाउस हो गए, जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं बेसिकली मोस्टली लैंड पर होती हैं। इट सपोज नेचुरल वेजिटेशन, और क्या क्या सपोर्ट करता है, वेजिटेशन, फॉरेस्ट आपका, दैन क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, जो सपोर्ट्स वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम। हाउएवर लैंड इज़ एन एसेट ऑफ अ फाइनाइट, how land is an asset of a finite magnitude, therefore उसके ऐसा लैंड है कि जिसके बहुत सारे आयाम हैं, मतलब कि लैंड के बहुत से यूज़ हैं। देयरफॉर इज इंपॉर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पस विद केयरफुल प्लानिंग। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी हम रिसोर्सेज को, लैंड को यूज़ कर रहे हो, बहुत ही केयरफुल प्लानिंग के साथ। इंडिया हैज़ लैंड अंडर द वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर, जो इंडिया है उसका जो लैंड है वो बिल्कुल वैरायटी ऑफ फीचर्स क्या क्या है, देखो बहुत सही है। माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड आइलैंड। इंडिया इज़ वन ऑफ द यूनिक कंट्री इन द वर्ल्ड, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ landforms are available, that is the mountain, plateau, plains and island, and about 43% of the land area is plain। इंडिया की पूरी जो एरिया है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, उसमें 43% जो एरिया स्टूडेंट इट इज प्लेन। जो प्लेन एरिया उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश वाले एरिया प्लेन है, विच प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, जहाँ पर क्या होता है, एग्रीकल्चर होती है और इंडस्ट्री सेटअप होती है। माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% माउंटेनियस रीजन है, जहाँ पर टोटल सरफेस एंश्योर्ड, जहाँ पर क्या होता है कि वहाँ से नदियाँ निकलती हैं, और साथ ही साथ टूरिज्म और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गंगा, यमुना, ये सारी नदियाँ हिमालय से तो होते हुए आ रही हैं स्टूडेंट्स। अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज प्लेट्यू रीजन, और साथ ही साथ 27% का जो एरिया है वो क्या है स्टूडेंट्स, प्लेट्यू है। ओके, इट इज़ प्लेट्यू। इट पजेसेस रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। वहाँ पे क्या होता है, मिनरल्स मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं और फॉरेस्ट मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ दे लुक एट दिस पाई चार्ट। एक पाई चार्ट देखिए स्टूडेंट, दिस इज सर्कुलर एंड द माउंटेन प्लेन रीजन 43, 30 एंड 27। यू कैन ड्रॉ इन अवर कॉपी एंड जस्ट इट विल बी हेल्पफुल इन मेमोराइजिंग द कॉन्सेप्ट। ये बहुत हेल्प करता है स्टूडेंट मेमोराइज करने में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, तो लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर फॉलोइंग पर्पस। लैंड किस लिए यूज़ होता है, तो पहला होता है फॉरेस्ट के लिए, जंगलों के लिए। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो लैंड कल्टीवेशन खेती नहीं होती उसमें क्या होता है, तो फर्स्ट वन इज द बैरन एंड वेस्ट लैंड, बंजर छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, कुछ ऐसे जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस जैसे कि बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज बनाने के काम आता है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, कुछ ऐसे भी लैंड होते हैं मतलब अनकल्टिवेटेड जिस पर कोई खेती नहीं होती, उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, तो परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, उनको छोड़ दिया जाता है पास्चर के लिए, चारे के लिए।
मवेशियों को चरने के लिए। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया, और साथ ही साथ लैंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि मिसलेनियस क्रॉप जैसे ट्री क्रॉप्स होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है नेट सोन एरिया, और ये सब आगे अभी बताया जाएगा स्टूडेंट्स। कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर, और क्या होता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड कौन से होते हैं, ऐसे लैंड जिनको 5 साल तक जिस पर कोई खेती नहीं होती है। अब देखिए स्टूडेंट एक दो इंपॉर्टेंट है इसमें, फैलो लैंड्स एंड नेट सोन एरिया। ये क्या होते हैं देखो, करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन एग्रीकल्चर ईयर। फैलो लैंड क्या होता है, ऐसे लैंड जिस पर खेती नहीं होती है 1 साल या उससे कम साल तक, उस पर्टिकुलर 1 साल में, ठीक है। अदर देन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 ईयर। कुछ और भी होता है करंट फैलो। करंट फैलो किसको बोला जाता है स्टूडेंट, जिस पर्टिकुलर ज़मीन पर 1 साल या उससे कम खेती होती है, उससे कम साल में कोई खेती नहीं होती है 1 साल या फिर उससे कम में। और एक और होता है दूसरा अदर करंट फैलो लैंड में, उसमें क्या होता है 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में कोई खेती नहीं होती है। ओके, याद रखना, ये 1 मार्क्स में कभी पूछ देता है, यू नीड टू नो अबाउट दिस। एंड एरिया नेट सोन एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज अ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब क्या होता है कि ऐसी ज़मीन जो कि 1 साल से ज़्यादा बार सोई जाती है, ठीक है ना, तो उसमें पर्टिकुलर नेट सोन एरिया का मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया है उसमें कितनी खेती हुई, दैट इज़ नोन एज नेट सोन एरिया। और साथ ही साथ अगर कोई खेती है जिसमें कि 1 साल से ज़्यादा खेती हुई और कितनी मतलब पर्टिकुलर एक लैंड पर क्या खेती हुई है उसको जोड़ के क्या बोला जाता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। हो गया स्टूडेंट्स। Now in the next video I will discuss about the land use pattern in India students, so which is very very important students, इसको बिल्कुल ध्यान से एक बार आप पढ़िएगा। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से दिस चैप्टर इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। आई विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर इन द 3 वीडियोस। एक नेक्स्ट वीडियो और निकाल इसकी रिलीज़ करूँगा मैं स्टूडेंट्स, तो ध्यान से आप लोग पढ़िए इस पूरे वीडियो को सही से स्टूडेंट्स। सो वॉच करिए, लिसन करिए। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।